Analog Exactly, electronics. I'm expecting that. Our today's the lecture is the analog electronics. Okay, I think last year we were referred the one subject BEE. Can you study the BEE last time, last year? Yes, sir. अरे फटाफट आंसर दो ना यार. I'm not asked for own details. आपने किया है. What's the full form of BEE? What's the Basic electrical engineering. basic electrical engineering? या electronics? Electrical. Electrical Electrical and engineering. electronic engineering. Yes. वंस एक बार सब्जेक्ट का नाम अच्छी तरह से देख लो. आई थिंक सिट बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. Okay, and before I'm starting the subject, what is the major difference of electrical and electronics? Are you know what's the difference for electrical and electronics? What is the necessity and correlation of these two branches? Anyone is idea about the electrical and electronics? What's the difference? Is anyone's guys idea about? So electrical is a study of like current, voltage, and all. But Okay, electronics is like study of some small objects. for example, see, just here the little bit of difference. I will stay straightforward. Electronics is study of the manufacturing of device. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिवाइस एंड इलेक्ट्रिकल इज द सप्लाई ऑफ डिवाइस. इज द क्लियर दैट ऑल ऑफ यू क्लियर Yes, दैट sir. दिस कंसेप्ट. Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग डिवाइस मैन्युफैक्चर पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिकल में मैन्युफैक्चर डिवाइस हम लोग वर्क कैसे करने वाले हैं इसके लिए रिक्वायर सप्लाई क्या है वो पैरामीटर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे. राइट नाउ our the just today we are the start actually our model number 1 here. I think all of you are visible my enter screen. Yes, sir. ओके. अभी डेस्कटॉप पे मेरे कुछ आइकॉन है वो भी दिख रहा है आपको. हाँ सर. ओके. ओके इज इट फॉन्ट इज विजिबल. अपने Yes, sir. स्क्रीन पे क्या राइट Yes, डाउन किया sir. है. इज इट विजिबल है और फॉन्ट बढ़ाऊं. No, sir, it is visible. इज इट विजिबल ना कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं ना. ओके आवर मेन Sir, सब्जेक्ट इज द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक. ओके राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग द मॉड्यूल नंबर 1. हाँ बोलिए ना. हेलो बोलिए ना. तू तो बात कर रहा था मेरे से. मॉड्यूल नंबर 1 is the diode. Okay, in the diode. Okay, yes, before we start the diode, in the class of 11 and 12, we will study the some concept regarding about the semiconductor and PN junction diode. Can you hear this term? It's the previously आपने इससे पहले ये term सुना है? yes, sir. Semiconductor device. Okay, I am start the basically thing of the conductor, insulator and semiconductor. Okay, what is the concept of the conductor? कंडक्टर का कंसेप्ट किसी को याद है. What is the concept of conductor?
First one parameter is that conductor. Second one is the insulator. And third one is here that semiconductor. Okay, what's about the conductor? किसी को याद है कंडक्टर का डेफिनेशन? Anyone remember the definition of the conductor? Conductor is that कंडक्टर में क्या होता है? It is the flow of electron from one terminal to another terminal is known as the conductor. कंडक्टर में क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक लिया जाता है. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द कंडक्टर. ओके, फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ you place a spoon in your hand and one end of the spoon is there heated, what will happen after some time? यहाँ पे कुछ टाइम के बाद में क्या होने वाला है? सपोज आपने एक हाथ में आपके स्पून को यहाँ पे पकड़ के रखा है और सामने वन साइड में गैस बर्नर पे रखा है. आफ्टर 10 मिनट्स 15 मिनट व्हाट विल हैपन? ये एक्सपेरिमेंट में क्या होने वाला है? स्पून गरम. ओके, एग्जैक्टली. स्पून शुड बी हीटेड और स्पून गर्म होने के बाद में आपको हाथ को रियलाइज हो रहा है. Is that that's the spoon and that metal is the conductor, means the heat electrons are flow from burner to your end, that is our hand, means that is the flowing from one terminal to another terminal, that is the conductor. I will repeat again, the concept of conductor is that flow of electron is carried out one terminal to another terminal, that a particular material is known as the conductor. ओके, सपोज अभी सेम स्पून आपने पकड़ा है लेकिन जो स्पून का जो हैंडल है वो लकड़ी का है. व्हाट विल हैपन इन दिस केस? सेम स्पून अभी यहाँ पे लिया है और उसका जो हैंडल है वो लकड़ी का है. क्या होने वाला है वहां पे? स्पून गरम होगा लेकिन हीट नहीं लगेगा हाथ को. हाथ को हीट नहीं लगेगा बिकॉज वी आर रियलाइज, बिकॉज इट इज दी पर्टिकुलर इज दैट उसमें जो हम लोग वुड यूज कर रहे हैं, that's the particular wood is nothing but the insulator. जो यहाँ पे मैं वुड यूज कर रहा हूँ इंसुलेटिंग, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पास हो रहा है, मेटल तक आ रहा है, लेकिन मेटल से लेके जो आपके हाथ में वुड मटेरियल हम लोगों ने पकड़ के रखा है उसके बीच में वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो रहा है. दैट इज द वुडन का होगा या प्लास्टिक होगा, दैट इज सच अ मटेरियल एज द इंसुलेटर. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर? अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट है आपका सेमीकंडक्टर. तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर मींस दैट द कंडक्टिविटी लाइज समटाइम इट्स acts as a conductor, sometimes acts as an insulator. Means its conductivity lies in between the conductor and insulator is known as the semiconductor. कभी कभी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कभी कभी नहीं होता है. उसके बीच में उसकी कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर is known as the semiconductor. Means that is the conductivity lies between the conductor but much higher than the insulator. उसका कंडक्टिविटी कभी कभी कंडक्टर होता है, कभी कभी इंसुलेटर होता है. दैट्स acts as a semiconductor. Is the all of you clear that the concept of conductor, insulator and semiconductor? सबको clear हुआ? Yes, sir. Okay, because this is the today is our first lecture. All of you get the speed are the same speed से पढ़ाऊँ, स्पीड डिक्रीज करूँ या स्पीड इंक्रीज करना है, या जो मेरा टीचिंग ऑफ कॉम्बिनेशन है इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू इंग्लिश चाहिए, या जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे कंफर्टेबल हो आप? सर जैसे आप पढ़ा रहे हो वैसे कंफर्टेबल. इससे अभी मैंने सिर्फ एक टॉपिक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया, और इसके पीछे जैसे मैं आगे का वो सेम टेक्निक्स यूज करूंगा ना, तो इससे ज्यादा आगे जाने से बाद में सपोज आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो मैं आज ही इम्प्रूवमेंट कर लूंगा. इससे एनी प्रॉब्लम, किसी को कुछ डाउट से या स्पीड के बारे में या लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन अंडरस्टैंडिंग के बारे में तो क्लियर कर लो. ऑल ऑफ यू आर एग्री या बाकी सिर्फ अटेंडेंस के लिए ज्वाइन हुए? नहीं सर.
व्हाट सिर्फ अटेंडेंस के लिए ज्वाइन हुए पूजा? नहीं सर. इज द कंफर्टेबल आई थिंक. यस सर, कंफर्टेबल। Yes sir. ओके, एक्चुअली टुडे इज आवर फर्स्ट लेक्चर. देखो मेरा टारगेट क्या है मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ. मेरा एम बाद में मैं पढ़ा रहा हूँ. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीशन ऑफ द 100% ऑफ सिलेबस. 100% होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितना मैं पढ़ाने वाला हूँ उतना आपको क्लियर होना चाहिए. दैट्स माई टारगेट. सपोज 80% हुआ, 90% हुआ, जितना मैक्सिमम होगा. एज पर आई वर्क इन द एंड टू ट्राई टू रीच टू 100%, बट इन केस ऑफ इट मे बी कंप्लीट लेस देन 100, but you all the concept are understanding to you. That's my target, because you are our branches related correlated subject. That's why. Okay, आपको जहाँ पे भी डाउट आता है तो मुझे रुकवा लेना है और डाउट क्लियर करना है. नहीं तो ऐसे लेक्चर मत अटेंड करो कि मेरे साथ में मोबाइल लगा के साइड में छोड़ दिया और घर पे टीवी देखते बैठा. ऐसा लेक्चर नहीं करना है. ओके, होप्स ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग. Okay, right now we are start. The first topic our module is the diode. और डायोड में पहला आपका कंसेप्ट आता है बेसिक कंस्ट्रक्शन. बाद में आता है ऑपरेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, एप्लीकेशन ऑफ डायोड एज ए क्लीनर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विथ डॉट फिल्टर, एनालिसिस सिलेक्शन, रिक्वायर्ड एलसी हाफ एंड एलसी न्यूमेरिकल. ओके, कुछ से ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है. इट विल बी रिक्वायर्ड द 4 hour lecture. Okay, right now we are seeing the concept. Okay, before we are start with diode, I am starting with some parameter, that is the semiconductor. Because diode are manufacturing with the help of the some semiconductor material. तो इससे जो भी सेमीकंडक्टर मटेरियल से डायोड मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो हम लोग को पहले पता होना चाहिए एग्जैक्टली कंसेप्ट क्या है आपका डायोड के बारे में. ओके, राइट नाउ वी आर स्टार्ट semiconductor. Is the semiconductor. सेमीकंडक्टर, जब मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो आपके माइंड में एक सिंपल सा सवाल आ रहा है, सर व्हाट इज दिस सेमीकंडक्टर? एम आई राइट? The thought is that right now, what is the semiconductor and what is the purpose of this semiconductor? Okay. Before first we are conductor is the passing the electron flow from one terminal to another terminal. Insulator, the electron flow cannot passes from one terminal to another terminal. But semiconductor, the conductivity, the nature are lies in between. Sometimes it acts as a conductor, sometimes acts as an insulator. Okay, my next topic is that the semiconductor. And the semiconductor, the first question arises in our mind is that what is the semiconductor? Semiconductor are group of material such as JE, silicon. They are neither good conductor but not a good insulator. सेमीकंडक्टर में ऐसे कुछ मटेरियल हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, वो इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है बट इतने पूरे इंसुलेटर भी नहीं है. Such a, for example, the material is acts as a silicon. मैं सिलिकॉन की बात करता हूँ तो सिलिकॉन आपका प्योरली कंडक्टर भी नहीं है बट वो प्योरली इंसुलेटर भी नहीं है. Means at a room temperature this material have the conductivity considerably lower than the conductor but higher than the insulator. बट जब मैं उसको रूम कंडक्टर में रूम टेम्परेचर में रखता हूँ तो उसकी जो कंडक्टिविटी है आपका, कंडक्टिविटी जो है नॉर्मल कंडक्टर से कम है बट इंसुलेटर से उसका सेंसिटिविटी लाइज है. मींस इट लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. बट वहाँ पे सेमीकंडक्टर की जो यदि मैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करता हूँ तो दैट्स प्रॉपर्टी इज दैट सेमीकंडक्टर इज डिक्रीज इट्स द रेजिस्टिविटी विद द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर. जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है. तो क्या अभी माइंड में फिर से सवाल आ रहा है मुझे,
सर व्हाट इज द रेजिस्टेंस, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है, एनीवन नोन दैट, व्हाट अबाउट द रेजिस्टेंस, किसी ने पढ़ा है रेजिस्टेंस के बारे में? ऑफ फ्लो ऑफ पोजीशन ऑफ करंट। करंट। एग्जैक्टली राइट। मीन्स जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका मीन्स डिक्रीज द रेजिस्टिविटी विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। मीन्स इन अदर वर्ड सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, दैट इज द एंटीसी फॉर द रेजिस्टेंस। ओके, अभी यहाँ पे सेमीकंडक्टर आर बेसिकली क्लासिफाइड की टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। आपको दो टाइप कौन से बताए? एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एग्जैक्टली राइट, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, एन एग्जैक्टली टाइप एंड राइट। पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, उसमें एक वन ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर and another one is the एक्सट्रिंसिक extrinsic सेमीकंडक्टर। semiconductor, am I right? Intrinsic, extrinsic। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग दैट n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ओके, यहाँ पे अभी मैं n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर देख रहा हूँ, एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है आपका? चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा कलरफुल देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से याद भी आएगा। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर की मैं देखता हूँ तो आई थिंक एन टाइप इज ट्राइवेलेंट, एम आई राइट? एन टाइप आपका ट्राइवेलेंट है? यस सर। श्योर? यस। पेंटावेलेंट है। एक्स क्या है कंसेप्ट, भूल गए इतने जल्दी? एन टाइप एंड पी टाइप, which one is the trivalent and which one is the pentavalent? क्या है आपका एन टाइप, ट्राइवेलेंट है और पेंटावेलेंट है? पेंटावैलेंट। एग्जैक्टली राइट। पेंटावेलेंट मींस वहां पे वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर ज्यादा है वहां पे। नॉर्मल सैचुरेशन में रिक्वायर द 4 इलेक्ट्रॉन बट वन ऑफ द एडिशन इलेक्ट्रॉन्स हियर, दैट इज द n type of semiconductor is the pentavalent, pentavalent, pentavalent। That is, the doping is done in the intrinsic semi-crystal forming important practice can be noticed। अब उसमें important practice क्या ध्यान में रखना है हम लोग को? One is the mobile of electrons due the pentavalent, mobile electrons due, mobile means electrons का movement मुझे देखना है, thermal aggregation देखना है उसके बारे में, और thermal और होल ड्यू टू और होल की वजह से जो भी थर्मल एरिगेशन या जो पॉजिटिव आयंस वहां पे क्रिएट होता है, पेंटावोलस मींस इट विल बी क्रिएट द नॉर्मली पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयंस, दैट इज द ड्यू टू द पेंटावैलेंट एटम्स। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि एग्जैक्टली थर्मल मींस एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसे है। ओके, आई एम हियर ड्रॉ द स्ट्रक्चर। Proceed the structure. We are draw the first structure of this. All of you visible this diagram? सबको Yes, डायग्राम sir. दिख रहा है? था क्या लास्ट ईयर में ऐसा कुछ डायग्राम था 11 12 में? हाँ सर।
ओके मैं इतना ही ड्रॉ करता हूँ डायग्राम, क्योंकि है ना सेम वे डायग्राम नीचे भी आएगा, एम आई राइट, सेम पैटर्न रिपीट होता है, तो उसमें हम लोग को टाइम कंज्यूमिंग है, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट ड्रॉ फॉर द सेम सम पैरामीटर ओनली, यू आर नोटिस दैट द जस्ट ओनली कंसेप्ट, यहाँ पे कंसेप्ट के लिए मुझे जितना रिक्वायर्ड है उतना ही मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके राइट नाउ सी हियर दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो भी है इज द सैचुरेशन वी आर रिक्वायर्ड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, सेंटर में मुझे सिर्फ 4 आयन रिक्वायर्ड है, कितना इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है यहाँ पे सैचुरेशन के लिए, 4, am I right? But these are the pentavalent, means it consists of the 5 electron पॉजिटिव। देखो ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स गया आपका, यहाँ पे दूसरा गया, यहाँ पे थर्ड वन एंड लास्ट वन फोर्थ वन, ये means is the actually is required the for saturation is the fourth electron, but our system is the content of this material is the pentavalent, that is the one of the electron or the higher extra, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आपका है, दैट्स द पेंटावैलेंट, यहाँ पे आउटर एज में यहाँ पे 5 वन ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मींस दियर दैट यहाँ पे आपका सेंट्रलाइज इट विल बी एक्सेसिंग द 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होता है, ये जब एक ज्यादा है वहां पे इट इज द पॉजिटिवली चार्ज आयन एंड दैट इज द इमोबाइल आयन, यहाँ पे जो अंदर रहता है दैट इज द इमोबाइल, दे आर द कांस्टेंट, बट फिफ्थ इलेक्ट्रॉन विच बिकम अ फ्री मोबाइल। व्हाट इज द फ्री मोबाइल? फ्री मोबाइल मींस इट कैन बी इजीली मूव, फ्री मोबाइल में वो वहां पे इजीली मूव कर सकता है, दैट इज द रिप्रेजेंट। और उसके यदि मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ एन टाइप में, तो यहाँ पे एन टाइप में रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, तो दैट्स द प्लस, और यहाँ पे कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो भी है दैट विल बी द मूव। इससे कुछ डायग्राम देखा होगा आपने लास्ट ईयर में, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द थर्मल एलाइगेशन। जब यहाँ पे थर्मल हीट या कुछ भी अप्लाई करते हैं इट विल बी अलाइगेट द इलेक्ट्रॉन, मींस यहाँ पे जो भी कंसेप्ट पैरामीटर्स हो रहे हैं, जो पैरामीटर कंसेप्ट दैट इट विल बी रिक्वायर्ड द सैचुरेशन पर्पस ऑफ द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, वन दैट इज द फोर्थ आर द इनमोबाइल, जो सैचुरेशन के लिए जो भी 4 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं वो इनमोबाइल हो चुके हैं आपके, इट विल बी कांस्टेंट। यहाँ पे इनमोबाइल कौन से इलेक्ट्रॉन से, देखो ये दैट इज द इनमोबाइल इलेक्ट्रॉन, ये भी इनमोबाइल हो गया आपका, ये भी इनमोबाइल, दीज आर इनमोबाइल, बट वन ऑफ द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स इज द मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इट विल बी इजीली टू मूव, और यहाँ पे ये इजीली मूव हो रहा है, दैट्स द पर्पस ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट इज द स्ट्रक्चर of the n type of semiconductor material. All of you understand the concept of structure of semiconductor material? All of you understand this concept? Yes sir. Should I need to repetition someone? किसी को जरूरत है मैं रिपीट करूं? किसी को जरूरत है रिपीटेशन की? Is any doubt? Aditya, come on. Does you understand that concept? Yes sir. Aditi, what about you? Aditi, are you there? Aditi, are you there? Aditya, are you there? Aditi, Aditya are absent. Harsh, are you there? Harsh? Yes, sir. Okay. Harshat? Yes, sir. Pooja? Yes, sir. Preeti? Yes, sir. Rahul? Rahul, are you there? Are you getting this concept? Rahul. Okay. This is also absent. Ritesh? Yes, sir. Can you get all the concept regarding Yes, sir. this topic?
कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं? सेमीकंडक्टर्स, उसमें से कौन सा पढ़ा है अभी? एन टाइप पी टाइप वो बताया सर अभी। दोनों पढ़ा दिया? मतलब उनका पेंटावलेंट होते हैं कि ट्राइवलेंट होते हैं वो अभी एक्सप्लेन किया। हाँ, लेकिन अभी कौन सा डायग्राम बनाया था? एन टाइप का बनाया क्या पी टाइप का? एन टाइप। वेरी गुड, ध्यान है आपका इसका मतलब। ऋषभ, 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 आर यू देयर? ऋषिकेश, Yes, sir. ओके। शुभम, Hello, sir. यस सर। ओके। आदित्य बोलो, कोई फ्रेंड ने आपको मैसेज करके बताया सर आपका नाम ले रहे थे। सर नहीं, नेटवर्क इशू हो गया था तो मैं बोल रही थी आपका आवाज नहीं। व्हाट हैपेंड? नेटवर्क इशू हो गया था तो। होप सो इट विल बी रियल नेटवर्क इशू। हाँ सर। स्वप्निल, यस सर। okay, right now we are move to the next topic. अभी right now n type हो गया, next one is the p type of semiconductor. p type semiconductor, okay. I think आपको कैसे ध्यान में रखना है? n टाइप आपका पेंटावैलेंट है, p टाइप के लिए पीटी उषा नाम ध्यान में रखना है। पीटी उषा, टी इज अंडरस्टैंड द ट्राइवैलेंट मटेरियल, या आपको कोई अलग टेक्निक से ध्यान में रहता है तो नो इशू। दैट इज द, वहां पे पेंटावैलेंट है तो यहाँ पे क्या आपका ट्राइवैलेंट, ट्राइवैलेंट। Look at trivalence means is the working are exactly opposite, means saturation of electrons we are require the फोर्थ ऑफ इलेक्ट्रॉन। सैचुरेशन के लिए मुझे रिक्वायर कितना है? फोर्थ वन। बट यहाँ पे यदि ट्राइवेलेंट की बात करता हूँ तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सैचुरेशन ही नहीं यहाँ पे। देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स आपका लाइज है, यहाँ पे अनदर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे अनदर इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे सैचुरेशन के लिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपका लाइज नहीं है। इट विल बी कंटेंट्स फॉर द होल्स। होल्स मीन्स दैट इज द इनकम्प्लीट ऑफ द बॉन्डिंग्स, और इनकम्प्लीट ऑफ बॉन्डिंग से तो वहाँ पे एम्प्टी होल्स हैं, और वो बॉन्डिंग कंप्लीट करने के लिए मैं हेल्प लेता हूँ वहाँ पे एन टाइप से। बट राइट नाउ हियर जैसे ए डायग्राम में यहाँ पे 1 ज्यादा इलेक्ट्रॉन is पॉजिटिव, बट इन द nth type, sorry, in a p type, these term are negative, these also negative. Why it I am considered as a negative? Because it is the trivalent and saturation of this system, saturation of the p type of semiconductor, it will be required the fourth one electron, but here one is the trivalent, that's why here one comes electrons are less, and due to one electron less it will be completely for the holes are created. For this the structure I am explaining the creation of the holes, or in either in n type or p type. In the n type we are used for the aluminum added to silicon structure, and in a n type we are using the only minority carrier of the silicon structure without added the, मीन्स यहाँ पे थर्मल एरेगेशन के बाद में स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे यूज किया है। ट्राइवेलेंट के लिए मैंने यूज किया है एल्यूमिनियम एडेड द सिलिकॉन टू द एसआई क्वेश्चन, दैट इज द क्रिएशन ऑफ द होल्स। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द कांसेप्ट ऑफ द एन टाइप एंड पी टाइप। दोनों कांसेप्ट क्लियर हुआ आपको एन टाइप और पी टाइप का? Is the clear that? Shall I move to the next topic or any doubts? सबको क्लियर हो गए? सर पी टाइप एक और बार समझिए। ओके,
पी टाइप इज द बेसिकली ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट मीन्स वहां पे सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हम लोग को कोई भी एटम यदि मुझे सैचुरेट करना है या बैलेंस लेवल करना है, तो बैलेंस लेवल करने के लिए आपके पास कितना चाहिए? 4। बैलेंसिंग पर्पज वी आर रिक्वायर्ड विथ 4 electrons, but here one electron is uncompleted, that's why we are create the one of the empty space, और यदि ये one empty space है, that's the empty space is required as the whole। ये देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। बैलेंस करना यदि मुझे, तो इसको रिक्वायर्ड है 4 स्पेस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और p type material is the trivalent, this is containing the only 3 holes। ये देखो 1 2 और यहाँ पे 3 लेग जोड़ पाए, और मुझे रिक्वायर्ड थे 4 लेग्स, तो यहाँ पे 1 लेग्स मेरे पास नहीं है, तो दैट इज द ट्राइवेलेंट है। तो यहाँ पे जो भी एक रहता है, एक कम है, तो दैट्स व्हाई वी हियर क्रिएट द नेगेटिव, एंड दिस नेगेटिव इज रिकॉल्ड एज द इनकम्प्लीट बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड एक कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट हुआ है, और इनकम्प्लीट बॉन्ड के लिए यहाँ पे मुझे रिक्वायर्स था आपका बॉन्ड आपका इनकम्प्लीट है, तो बॉन्ड आर इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट बॉन्ड्स की वजह से वहां पे जो भी वैकेंसी क्रिएट हुआ है, दैट्स रिक्वायर्ड एज द होल। यहाँ पे क्या कंप्लीट हुआ? होल। जब मैं P एंड N यदि मैं दोनों को कंबाइन करता हूँ, एट दैट टाइम वी आर क्रिएट द जंक्शन ऑफ द PN जंक्शन डायोड, और वहां पे जो ये ज्यादा होता है यहाँ पे, इट विल बी कम टू हियर, and it will be balancing the both the electrons and saturation level for the both the material for the p type as well as n type, and that's the combining we are create as the PN junction of diode। right now clear that what is the p type material? आपको clear हुआ? ट्राइवेलेंट वहां पे एक वैकेंसी है, दैट इज इम्बैलेंस है, और वैकेंसी मींस वी आर क्रिएट द नेगेटिव एंड ये होल्स हुआ आपका। यस सर, नाउ क्लियर सर। हेलो, यस सर, क्लियर हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट वन है आपका पीएन जंक्शन डायोड। ओके, बिफोर वी स्टार्ट द डायोड, डायोड की यदि मैं बात करता हूँ, इज इंडिकेट डायोड। डायोड इज द टू टर्मिनल डिवाइस। डाई इज इंडिकेट एज द टू टर्मिनल डिवाइस, इज द डायोड। यदि मैं ट्रायोड की बात करता हूँ, तो ट्रायोड इज द 3 टर्मिनल डिवाइस, और यहाँ पे यदि डायोड, तो बिफोर वी स्टार्ट डायोड, व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ द जंक्शन? आपने इससे पहले देखा ना, रेलवे स्टेशन के काफी सारे नाम पे जंक्शन लिखा रहता है। वो रेलवे स्टेशन पे इसे जंक्शन क्यों लिखते हैं? रेलवे स्टेशन पे इसे जंक्शन क्यों लिखा रहता है? कैन यू रीड द सच नेम? वैसे आपने नेम आपने रीड किया है? व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ जंक्शन? आपने इससे पहले रीड आउट किया है जंक्शन? आपने रीड आउट किया जंक्शन नाम कभी? यस सर। जंक्शन का मतलब पता है क्या आपको? जनरल जंक्शन, ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूँ। सर जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आती रहती है। ट्रेन तो नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे भी आता है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म पे जंक्शन नहीं लिखा रहता है। आपने कौन सी स्टेशन पे जंक्शन देखा है, पढ़ा है? सर जहाँ पे रुकती है ट्रेन। कल्याण हर जंक्शन। स्टेशन पे रुकता है सर जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन ज्वाइन होती है, बहुत अभी सारी। देखो खारगर में भी ट्रेन रुकता है, लेकिन खारगर के नाम के आगे खारगर जंक्शन नहीं लिखा है। कुर्ला में लिखा है जंक्शन, थाना में लिखा है, पनवेल में लिखा है। आगे सर बहुत सारे रूट्स वहाँ के मिलते हैं एक जगह मीन्स पे। एग्जैक्टली नियर बाय अमन सही बात कर रहे हैं। जहाँ से मोर देन वहाँ से नया रूट क्रिएट होता है, वी आर क्रिएट द अलग रूट। नया रूट जहाँ पे क्रिएट होता है, देयर राइट डाउन द जंक्शन। जंक्शन मीन्स वी आर द कंबाइन ऑफ द टू रूट्स। जहाँ पे दो रूट कॉम्बिनेशन किए जाते हैं, दैट्स पैरामीटर इज नोन एज जंक्शन। सिमिलरली आवर टॉपिक है आपका पी एन जंक्शन। यदि मैं पी एन जंक्शन की बात करता हूँ, तो पी एन जंक्शन इज दैट जहाँ पे आपका पी टाइप एंड एन टाइप दोनों मटेरियल जहाँ पे ज्वाइन किए जाते हैं, दैट इज द पी एन जंक्शन। एंड हियर
Diode is the two terminal of device. One is the terminal is the p type, another one is the n type. N type terminal is the cathode, p type terminal is the anode. और ये दोनों को ज्वाइन करते, that's why we are recall the name of the p-n junction of diode. These two different type of semiconductor material are joined here. That's why it's named as the p-n junction diode. क्लियर हुआ? p-n जंक्शन डायोड जंक्शन क्यों यूज किया है? इस यहाँ पे मैं वर्ड टू वर्ड आपको बता रहा हूँ, ये वर्ड क्यों आया जंक्शन वर्ड, मींस इट विल बी जॉइनिंग ऑफ द टू मटेरियल, और जहाँ पे दोनों ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से, जहाँ से कनेक्ट किया जाता है, दैट्स द नेम, दैट्स द रीजन इज नोन एज द डिफ्रैक्शन. और इसका जो भी है डिटेल्स, यदि मैं बात करता हूँ p-n जंक्शन डायोड, तो इन द p-n जंक्शन डायोड विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ. आज के लेक्चर में मैं सिर्फ पी टाइप और एन टाइप भी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कल के लेक्चर में पूरा एक्चुअल जो मेरा टॉपिक रहेगा पीएन जंक्शन डायोड, देन बैरियर पोटेंशियल, बिल्टअप पोटेंशियल, या जो भी आपके दोस्त है आपसे मैं उनको मैसेज देना कि कंटिन्यूसली लेक्चर अटेंड करो. वाइड डिफ्लेक्शन रीजन, मींस ऑल एवरीथिंग अबाउट डायोड, और 1 घंटे में पूरा डायोड कंप्लीट कर दूंगा पीएन जंक्शन डायोड. बाद में डायोड के इक्वेशन जो भी पैरामीटर है वो स्टार्ट करेंगे. एंड आई थिंक कल आफ्टरनून में आपका लैब भी है, राइट? यस सर. ओके, लैब में भी हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन या जो भी पैरामीटर है वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट. एक्चुअली लैब तो कल कुछ सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन दे दूंगा मैं कल के आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, वेट 1 मिनट, जस्ट आई विल टेक अटेंडेंस. जरा जल्दी रोक रहा हूँ मैं आज का लेक्चर.